ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے تختی نمبر 26۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو حضرات ہمارے چینل پہ نئے ہوں، سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں۔ چلیے بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف۔ یہ علامات یہ جمع ہے، جس کو ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں پلورل ہے، جمع ہے۔ وقف علامات کے معنی پہچان، کیا ہے؟ پہچان۔ وقف، وقف کے معنی ٹھہرنے کے آتے ہیں۔ علامات وقف کیا مطلب؟ ٹھہرنے کے پہچانات۔ یعنی آج ہم لوگ آج کے سبق میں پڑھیں گے کہ قرآن کریم کے اندر جو ٹھہرنے کی جگہیں ہیں، ٹھہرنے کی جگہیں ہیں، تو ان جگہوں کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں گے کہ کہاں پر ٹھہرنا ہے اور کہاں پر نہیں ٹھہرنا ہے۔ تو آج ہم لوگ اسی بات کو پڑھیں گے، یعنی ٹھہرنے کی پہچان کو، کس جگہ کو ٹھہرنا ہے اور ٹھہرنا ہے تو اس کی پہچان کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہی کہا کہ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے، کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات، یعنی نیچے لکھی ہوئی پہچان قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوتی ہیں، اس کے موافق وقف کرے یعنی ٹھہرے۔ یعنی جو نیچے انہوں نے بنا دیا ہے، پہچان بتا دی ہے کہ یہ جگہیں قرآن کریم کے اندر آئے، لکھا ہوا آپ کو ملے تو آپ کو ٹھہرنا چاہیے۔ تو ان جگہوں کو آپ جو ہے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہاں لکھا ہے علامات، یعنی پہچان۔ یہ پہچان ہے، 2 3 اس طرح کی پہچان بنے ہیں۔ تشریح یعنی اس علامت، یہ جو علامت ہے، یہ پہچان ہے، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں یہ لائن میں ہے، یہ علامات ہیں، یعنی یہ لکھے ہوں گے قرآن کریم کے اندر ما، قف، سل، صلا، لا، ٹھیک ہے۔ تو ان جگہوں میں ٹھہرنا ہے۔ ما کا کیا مطلب ہوتا ہے تو انہوں نے اس کی وضاحت کر دی، تشریح کر دی، ٹھیک ہے۔ قف کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کی وضاحت کر دی۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو علامات، تو سب سے پہلے علامات کے انہوں نے آیت کو بتایا۔ یہ جو گول نشان ہے قرآن کریم کے اندر، جہاں کہیں بھی آپ کو ملے، جہاں کہیں بھی آپ کو ملے تو آپ کو اس پر ٹھہرنا ہے، اس پر کیا کرنا ہے؟ ٹھہرنا ہے۔ تو ٹھہرنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اس کو سمجھیے۔ ٹھہرنا یہ ہے کہ اگر 2 زبر پر ہم لوگ ٹھہریں گے، کس پر؟ 2 زبر پر ٹھہریں گے تو اس صورت میں وہاں پر جو ہے وہ 1 الف پڑھا جائے گا، 2 زبر نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم لوگ اس بات کو کاپی کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہاں لکھا ہے افواجن، مان لیجیے مثال کے طور پر یہاں آیت ہے۔ اب ہم لوگوں کو یہاں ٹھہرنا ہے، تو 2 زبر ہے نا، تو جب 2 زبر ہے تو 1 زبر کے ساتھ ہم لوگ الف کو پڑھیں گے، اور یہاں کا کیسے وقف کریں گے؟ افواج، سمجھ گئے؟ یعنی جب 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو 1 زبر کو اس کو کاٹ دیں گے اور 1 زبر اور اس الف کے ساتھ پڑھیں گے، اور کیا پڑھیں گے؟ افواجا، ٹھیک ہے۔ چلیے تو ہاں 2 زبر پر ٹھہرنا تب یہ بات ہے، اور اگر زبر، زیر، پیش، 2 زیر، ٹھیک ہے، اسی طرح سے 2 پیش کے اوپر وقف کرنا ہو تو آخری والے حرف کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر کے سانس کو توڑ دیں گے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ جو ہے جب اما پارا پڑھیں گے اس کے اندر ہم لوگ مشق کریں گے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ تو یہ جو گول آیت ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ علامت کہتے ہیں، پہچان ہے۔ یہ جہاں بھی آپ کو قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا ملے آپ کو یہاں ٹھہرنا ہے۔ تو اس علامت کو کیا نام ہے؟ اس علامت کا نام کیا؟ آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ یہ جو 5 نمبر لکھا ہے، یہ آپ کو یہ مثل، یہ جو گول نشان ہے یہ آیت ہے، تو اس کا بھی حکم ایسا ہی ہے، یعنی جس طرح سے یہ گول نشان جہاں لگا ہو وہاں ٹھہرنا چاہیے، اسی طرح سے یہ جو 5 جہاں بھی لکھا ہو ہے نا وہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ اس لیے کہا یہ مثل آیت کے حکم کے ہے، یعنی اسی کی طرح یہ بھی ہے۔ اب دیکھتے ہیں میم۔ میم یہ کیا ہے
कहते हैं ये आप ये समझ लीजिए मीम, कुरान करीम के अंदर जहाँ भी मीम लिखा हो तो उस जगह ठहरना लाजिम है, ज़रूरी, वाजिब है, एकदम आपको ठहरना ही है। इसलिए उन्होंने कहा तफसीर की, ये वक्फ़ लाजिम की अलामत है, इस पर ठहरना ज़रूरी है, यानी अहम है ना। तो जहाँ भी आपको कुरान करीम के अंदर लिखा हुआ मिले मीम बीच में, तो आपको वहाँ ठहरना ज़रूरी है। बीच में मतलब ये है कि मीम आयत के अंदर नहीं, आयत कुरान करीम की आयत आप पढ़ रहे हैं और आपको छोटा सा मीम लिखा हुआ मिले, छोटा सा मीम लिखा हुआ, जैसे मिसाल के तौर पर ये यहाँ लिखा है मलाइहिम, तो ये वाला मीम नहीं बल्कि आपको इस तरह से आपको छोटा सा मीम मिलेगा। जैसे आप देख लीजिए, ये जो इस तरह से आपको छोटा सा मीम लिखा हुआ मिले, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, ये वक्फ लाजिम की अलामत है, यानी इस पर ठहरना ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं तो जहाँ लिखा मिले कुरान करीम के अंदर, ये छोटा सा, ये बड़ा सा नहीं, ये छोटा सा, ये जो है ना, ये मान लीजिए यहाँ पर आया था, अरे छोटा सा इस तरह से आपको ता लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो तो कहते हैं वक्फ मुतलक की अलामत है, इस पर ठहरना चाहिए, जहाँ भी ता लिखा मिले आपको ठहरना चाहिए, अगर नहीं ठहरे मिलाकर पढ़े कोई हरज नहीं है, लेकिन जहाँ पर ये जो मीम लिखा है आपको वहाँ ठहरना ज़रूरी, आप मिलाकर नहीं पढ़ सकते हैं। आगे लिखा जीम, कहते हैं वक्फ जायज़ की अलामत है, यहाँ ठहरना बेहतर है, अगर नहीं ठहरेंगे कोई बात नहीं है, मन करे ठहर लीजिए। इसी बस ज़हन में बिठा लीजिएगा, ये जो छोटे छोटे हरूफ अलग से लिखे होंगे है न, जो सेंटेंस के अंदर, जो जुमले के अंदर मिलकर आएगा वो नहीं, बल्कि अलग से छोटा सा जीम लिखा हुआ मिलेगा आयत के आखिर में, ईसा है ना, इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से छोटा सा जीम लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो इस पर क्या है, क्या करना है, ठहरना है, ठीक है। इसी तरह जा, यहाँ ठहरने की इजाज़त दे दी गई है, ठहर लीजिए, कोई हरज नहीं है, नहीं भी ठहरिए कोई हरज, इजाज़त है, ठीक है। इसी तरह साद, कुरान करीम के अंदर जहाँ भी साद लिखे मिले तो वहाँ पर भी कहते हैं यहाँ ज़रूरत के वक्त ठहर जाए तो रुख्सत है, इजाज़त है। आगे काफ, इसका मतलब ये है कि पिछली आयत में जो अलामत आ चुकी वही यहाँ भी है। मान लीजिए कुरान करीम के अंदर जो है लंबी चौड़ी आयत है, पहले एक आयत आ चुकी, मिसाल के तौर पर ये ऊपर में ये आयत आ चुकी है, ठीक है, कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं और ये आयत आ चुकी है, और उसके बाद फिर फ़ौरन लिखा है काफ, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर भी आयत है, आपको यहाँ भी ठहरना है। या मान लीजिए पहली आयत के अंदर लिखा हुआ था मीम, ठीक है, और उसके बाद ये आ गया, ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि वहाँ पर ज़रूरी था ठहरना, यहाँ भी ज़रूरी ठहरना, गोया कि ये जो इशारा कर देता है कि पहली वाली आयत के अंदर जो हुक्म था वो हुक्म यहाँ भी है। आगे देख लेते हैं, लिखा है मा, ये मुआनका की अलामत है, दो जगह तीन तीन नुक्ते लिखे होते हैं, उनमें से एक जगह ठहरे और एक जगह मिलाकर पढ़े। ये जो माँ है, मान लीजिए कुरान करीम ये है, ठीक है, तो कुरान करीम के साइड में इस तरह से आपको माँ लिखा मिलेगा, ठीक है, और ये जो है मान लीजिए ये आयत है, तो आयत के अंदर तीन नुक्ता यहाँ लिखा मिलेगा, तीन नुक्ता यहाँ लिखा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो दो जगह हो गया, तो एक जगह ठहर लीजिए और एक जगह नहीं ठहरना, एक जगह मिलाकर पढ़ना है। ये इंशाल्लाह अम्मा पारा हम लोग पढ़ेंगे तो उसके अंदर मश्क हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, लिखा है कफ, यहाँ ठहर जाए तो कोई हरज नहीं, यानी कुरान करीम के अंदर छोटा सा काफ कफ लिखा हो आयत की शक्ल में, तो कहते हैं यहाँ ठहर जाए तो कोई हरज नहीं है, और मिलाकर पढ़े तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे लिखते हैं सल, यहाँ भी ठहर सकते हैं मगर ना ठहरना बेहतर, ठहर सकते हैं लेकिन अगर कोई ना ठहरे तो ये बेहतर, अच्छी बात है। सला लिखा मिलेगा, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए, याद रहे कि सला जहाँ भी कुरान करीम के अंदर आपको लिखा हुआ मिले वहाँ ठहरना नहीं बल्कि मिलाकर पढ़ना है। आगे देखते हैं, लिखा है ला मलिफ ला, ये आपको जहाँ भी कुरान करीम के अंदर छोटा सा लफ्ज़ों में जो है वो आयत की शक्ल में जो है मिले, इसका क्या मतलब होता है, कहा ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यानी मान लीजिए गोल आयत है, ये जो गोल आयत लिखा और ऊपर में इस तरह से ला लिखा हुआ, ठीक है, देख लिया आप, इस तरह से लिखा हुआ है, कहा ये अलामत कहीं आयत पर होती है, यहाँ ठहरे या ना ठहरे मतलब नहीं, यानी ठहर लीजिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ना ठहरे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर ता और जहाँ इबारत के दरमियान
ला हो, वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। कहने का मतलब ये गोल वाला नहीं है, गोल वाला लिखल नहीं है, ठीक है, खाली सिर्फ ला है ना, सिर्फ ला है, या ता के ऊपर ला लिखल है, ठीक है। तो इस सूरत में यहाँ ठहरना नहीं चाहिए वरना मतलब बिगड़ जाएगा, बल्कि मिलाकर पढ़ना चाहिए। और अगर आयत है, इस तरह से आयत लिखा है और उसके ऊपर से ला लिखा है, तो इस सूरत में वहाँ ठहरना चाहिए। अगर किन्हीं हजरात को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको बेहतरीन अंदाज में फिर जो समझा दिया जाएगा। आगे देखते हैं, लिखा है सीन या सक्ता। कहते हैं क्या मतलब इसका, कहते हैं कि यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करके मगर सांस ना टूटने पाए, यानी कुरान करीम के अंदर जहाँ कहीं भी सीन लिखा हो या सक्ता लिखा हो, मेरे ख्याल से 2-3 जगहों में ये लिखा है, तो उस सूरत में आपको यहाँ ठहरना किस अंदाज में है, यानी आपको सिर्फ आवाज़ रोक देनी है और जो है सांस नहीं तोड़ना है। जैसे मैंने आपको कुरान करीम के जो 30वें पारे हैं, अम्मा पारा, उसके अंदर एक जगह लिखा है कल्ला बल राना, तो ये जो कल्ला बल, बल के बीच में ये सक्ता लिखा है, तो यहाँ क्या पढ़ेंगे, कल्ला बल राना, ठीक है। तो यहाँ सक्ता मैंने किया, यानी बीच के अंदर सिर्फ आवाज को बंद कर दिया लेकिन सांस को नहीं तोड़ा, इसी को कहते हैं सक्ता। तो सीन या सक्ता जहां कहीं भी लिखा हो वहां पर क्या करेंगे, आवाज को तो तोड़, आवाज को बंद कर देंगे, है ना, और जो है सांस को नहीं तोड़ेंगे। आगे लिखा है कौफ, यहाँ ठहरने में कोई हरज नहीं है, ठीक है, ठहर सकते हैं। आगे लिखा वक्फा, वक्फा यानी कुरान करीम के अंदर छोटा सा जहाँ भी वक्फा लिखा हो, कहते हैं यहाँ सक्ता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे और सांस ना टूटने पाए, यानी वक्फा का मतलब वही जो सक्ता था, लेकिन सक्ता में थोड़ा कम रुकना है और यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा देर तक रुकना है, ठीक है। यहाँ सक्ता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे, आवाज़ सिर्फ बंद करना है और सांस ना तोड़ना है। आगे देखिए यहाँ क्या लिखा है हाशिया के अंदर, कहते हैं 1 नंबर में लिखा है जहाँ कहीं अलामत हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है, यानी एक जगह है और जो है एक आयत मान लीजिए है, एक आयत है कुरान करीम के अंदर और एक आयत गोल वाला है, एक जीम है, कई सारी अलामात मौजूद हो, तो उस सूरत में किस पर अमल करेंगे, तो कहते हैं जो सबसे ऊपर हो उस पर अमल बेहतर है। आगे लिखा है कि आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो इस कलिमा के आखिरी हरफे को साकिन करके सांस तोड़े, फिर कुछ पीछे से लौटा कर पढ़े। कहने का मतलब ये आप कुरान करीम को पढ़ रहे हैं, लंबी लंबी आयत आ जाए, अब इस सूरत में जो है सांस इंसान का चल नहीं पाता, ऐसी सूरत में अगर आप बीच में कहीं रुक जाए जहाँ पर आयत ना हो, तो जहाँ पर आयत ना हो तो वहाँ रुकने का तरीका ये है कि आखिरी हर्फ को क्या कर देंगे, हम साकिन कर दें, साकिन कर देंगे कि जो है कर कर सांस तोड़ देंगे, फिर उसके बाद एक दो आयत नहीं बल्कि 1-2 लफ्ज पीछे से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हम आपको जो है मिसाल के तौर पर पढ़कर बताते हैं, तब्बत यदा अबी लहब, अब यहाँ सांस टूट गया, ठीक है, तब क्या कहेंगे कि ऊपर आगे से मिलाएंगे, कहेंगे अबी लहबी व तब। बहरहाल तो ये कहने का मतलब है, ये खुलासा हुआ आज के सबक का। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप हजरात को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कहाँ हमको रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। तो आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे वीडियो में आप हजरात बने रहें। इंशाअल्लाह जब अम्मा पारा हम लोग शुरू करेंगे तो बेहतरीन से उसके अंदर इजरा इंशाअल्लाह उस अंदाज में कराएंगे कि आप एक बेहतरीन कुरान करीम को पढ़ने वाले बन जाएंगे। आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा कायदा होगा, कहाँ गुन्ना होगा, कहाँ इख्फा होगा, कहाँ इजहार अलक़ी होगा, कहाँ कलकला होगा। इंशाअल्लाह जो उसके लिए हम बेहतरीन से इजरा करवाएंगे। आप हजरात से गुजारिश है जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।